Kos, welcome to Nursingpedia. Here I will try to clear all your queries regarding to your nursing, and for this please do subscribe my channel and hit the like button to boost my confidence, and also I will mention my Insta handle on the screen somewhere so you can follow me there also. So let's start with the topic respiratory system disorders of MSN, which is your medical surgical nursing. So firstly I will give a brief introduction about the respiratory system so it will ease to you people to understand its disorders. Okay, so let's start. Firstly, I will tell you about respiration. So as you all know, respiration is a process of gases exchange between the atmosphere and body cells, or you can say between the blood and the lungs also. Okay, so respiratory system has two organs basically, or it is divided into two parts. Number one is upper respiratory tract and number two is lower respiratory tract. So your upper respiratory tract consists of your nose, your nasal cavity, sinuses and pharynx. Okay, and your lower respiratory tract consists of larynx, trachea, bronchial tree and lungs. And so we will study it one by one. Okay, so firstly nose पढ़ते हैं हम लोग. So as you all know that nose is supported by bones and cartilages, right, and it also provides a way or passage for the entrance of the incoming air, right, and nose also contains some nostril hairs also which help them to filters the air. ठीक है, जो कि जो nostril hairs होते हैं वो air को filter करने में help करते हैं. The next is your nasal cavity. So your nasal cavity is just located posterior to your nose. Okay, nasal cavity जो होती है वो आपके just nose के posteriorly ही located होती है, and this cavity has passageways also. Okay, and the whole nasal cavity is lined with mucous membrane. Okay. Now next is your sinuses. So sinus is nothing but the air filled spaces in your skull. ठीक है, skull के अंदर air filled spaces होती हैं which makes स्कल लाइटर, जो कि स्कल को बहुत ज़्यादा लाइटर बनाती है. ठीक है, एंड इट ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस. ओके, सो नेक्स्ट इज़ योर फेरिंग्स. फेरिंग्स बेसिकली फेरिंग्स में क्या होता है कि जो आपका फूड एंड एयर होता है वो उसको पास थ्रू होने में हेल्प करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स ऑल्सो. ओके, सो टिल हेयर योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले आता है लैरिंग्स. सो लैरिंग्स इज प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंग्स एंड द ट्रेकिया, एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रिवेंट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग ट्रेकिया. ठीक है, ट्रेकिया से जो भी पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं उनको ट्रेकिया में जाने से वो प्रिवेंट करता है. ठीक है, एंड होल्ड वोकल कॉर्ड्स, ये वोकल कॉर्ड्स को होल्ड करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज योर वोकल कॉर्ड्स. सो वोकल कॉर्ड्स आर नथिंग बट द टू पेयर्स विच चेंजिंग टेंशन to control the pitch. Okay, and also changing their force of air to control your loudness. Okay, now next is your epiglottis. As you all know about the epiglottis, that epiglottis is a flap like structures, है ना, that covers trachea during swallowing, ताकि जो खाना है वो आपके ट्रैकिया के अंदर एंटर ना हो पाए, तो उसके लिए वो उसको प्रिवेंट करता है ट्रैकिया को. नेक्स्ट इज योर ट्रैकिया. सो ट्रैकिया बेसिकली क्या होता है कि ट्रैकिया जो आपका ईसोफेगस होता है उसके इंटीरियरली लोकेटेड होता है, दैट मीन्स उसके आगे की तरफ लोकेटेड होता है ना, एंड इट एक्सटेंड्स इनटू द थोरेसिक कैविटी, एंड देन वो एक्सटेंड हो जाता है थोरेसिक कैविटी के अंदर, एंड ऑल्सो इट सेपरेट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई. वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर भी सेपरेट हो जाता है, एंड इट्स इनर वॉल इज लाइंड विद सीलिया एंड दी म्यूकस, और जिसकी इनर वॉल्स होती हैं वो सीलिया और म्यूकस से लाइंड होती हैं. ऑल्सो ट्रैकिया हैज़ 20 कार्टिलेजिनस रिंग्स. ठीक है, जो कि ट्रैकिया को प्रिवेंट करती है फ्रॉम क्लैप्सिंग से, जो कि ट्रैकिया को प्रिवेंट करके रखती है, राइट. देन आता है ब्रोंकियल ट्री. तो ब्रोंकियल ट्री क्या होता है कि बेसिकली इट इज़ अ ब्रांच्ड ट्यूब दैट लीडिंग्स फ्रॉम ट्रैकिया टू द एल्वुलाई, एंड ऑल्सो इट स्टार्ट्स विद टू मेन ब्रोंकाई, right one and the left one, and then right and left both goes into lung. Right one goes to right lung and left one goes into left lung. ठीक है, and this bronchi further leads to bronchioles. ठीक है, bronchi से आगे फर्दर क्या बन जाते हैं, फिर bronchioles में डिवाइड हो जाती हैं ये. फिर ये जो bronchioles होते हैं that further leads to alveolar ducts, and these alveolar ducts leads to alveolar sacs. ठीक है, and alveolar sacs फिर कहाँ पर जाकर एंड हो जाते हैं, alveoli में एंड हो जाते हैं, जहाँ पर आपका जो एक्सचेंज होता है गैसेस का बिटवीन द ब्लड एंड द एयर वो अकर होता है वहाँ पे. ठीक है, देन नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर लंग्स. सो लंग्स एज यू ऑल नो दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ 2 लंग्स, है ना, राइट एंड लेफ्ट, एंड राइट लंग हैज़ 3 lobes एंड लेफ्ट लंग हैज़ 2 lobes, एंड दिस बोथ लंग्स आर सेपरेटेड बाय मीडियस्टेनम. से जो लंग्स होते हैं वो दोनों सेपरेटेड होते हैं, एंड दिस लंग्स आर एनक्लोज्ड बाय डायफ्राम एंड थोरेसिक केज विच इज़ योर रिब्स, है ना. तो जो एंड लंग्स है वो एनक्लोज किसके थ्रू होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, डायफ्राम और थोरेसिक रिब्स की या केज की वजह से. ठीक है,
एंड जितने भी आपके ब्रोंकस और ब्लड वेसल्स हैं वो सब के सब लंग्स के अंदर ही एंटर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो था आप लोगों के जो ऑर्गन्स थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक फंक्शन क्या होता है। सो उसका बेसिक फंक्शन होता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म परफॉर्म करना, है ना। ब्रीदिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, यही होता है बेसिकली। ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता क्या है, वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को, है ना। and it is of it composed of two parts, inspiration and exhalation। इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको इनहेल करते हैं, दैट इज़ इंस्पायरेशन। मतलब जब हम एयर इनहेल करते हैं तो एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है, तब क्या होता है कि जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, हमारा जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो वॉल्यूम होती है कैविटी की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है ना, और एयर हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। एंड एक्सहेलेशन में क्या होता है कि जब हम लोग एयर जब हमारे अंदर से बाहर जाती है, यानी कि व्हेन द एयर लीविंग दी लंग्स, जब लंग्स को छोड़कर एयर बाहर की तरफ मूव करती है ना, so that is the exhalation। So till here the introduction about the respiratory system। Now we will study the disorder। So first disorder है हमारा साइनोसाइटिस। सबसे पहले हम साइनोसाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। देखो साइनोसाइटिस यानी इसकी लास्ट में क्या आ रहा है, ITIS, राइट, ITIS आ रहा है। ITIS जहाँ पर भी आता है उसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन का या उस पर्टिकुलर पार्ट का या एरिया का इन्फ्लामेशन हो जाना, यानी कि रेडनेस क्रिएट हो जाना, स्वेलन हो जाना, वहाँ पर स्वेलविंग हो जाना, वहाँ स्वेलो हो जाना वहाँ पे, ठीक है। सो वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर पार्ट का क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो सेम ऐसा ही साइनोसाइटिस के साथ है। सो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया भी कि साइनस जो है वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है ना। सो साइनोसाइटिस क्या होता है, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर है। सो साइनोसाइटिस को हम लोग राइनोसाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। और साइनोसाइटिस की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो ऐसे है कि इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरानेजल साइनसेस एंड नेजल कैविटी, यानी कि जो आपके पैरानेजल साइनसेस हैं और जो आपकी नेजल कैविटी है, जब वहाँ पर उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि वो रेड हो जाती हैं, थोड़ा रेडिश कलर वहाँ पर हो जाता है, स्वेलो हो जाते हैं वो लोग वहाँ से, तो क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि साइनोसाइटिस सिंपली मीन्स व्हेन योर साइनसेस आर inflamed, red and swollen because of the infection or another problem, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जब आपके साइनसेस जो है वो रेड हो जाए और स्वोलन हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनसिस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है, क्या स्टडी करते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, कि हाउ द इन्फेक्शन स्प्रेड, कि इन्फेक्शन जो है वो हुआ कैसे है, वेदर कुछ भी रीज़न हो लेकिन वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हुआ कैसे है ना। सो हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं साइनोसाइटिस की। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फिर कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जो साइनसेस थे वो इन्फ्लेम्ड हो गए, वहाँ पर एडिमा हो गया, दैट मीन्स स्वेलिंग होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपकी साइनस कैविटी थी वहाँ पर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, है ना। अब साइनस कैविटी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन की तरह ही तो काम करेगा जो स्वेलिंग होगी, तो स्वेलिंग हो जाने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और जिसकी वजह से क्या हो गया, साइनोसाइटिस की कंडीशन अक्कर हो गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ साइनोसाइटिस। अब साइनोसाइटिस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट साइनोसाइटिस एंड क्रोनिक साइनोसाइटिस। इस वीडियो में हम लोग एक्यूट साइनोसाइटिस की बात करेंगे एंड अनदर वीडियो में हम लोग क्रोनिक साइनोसाइटिस की बात करेंगे, ओके। सो एक्यूट साइनोसाइटिस क्या होता है कि एक्यूट साइनोसाइटिस को सबसे पहले तो हम लोग एक्यूट राइनोसाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इट कॉजेज द कैविटीज़ अराउंड योर नेजल पैसेज टू बिकम इन्फ्लेम्ड एंड स्वोलन। ये क्या करता है कि जो आपकी कैविटीज़ होती है, जो नेजल कैविटी, उसके आसपास जो भी साइनसेस लोकेटेड हैं उनको इन्फ्लेम कर देता है और उनमें स्वेलन क्रिएट कर देता है, यानी कि वहाँ पर स्वेलिंग क्रिएट कर देगा और उनको इन्फ्लेम्ड कर देगा। सो दैट इज़ एक्यूट साइनोसाइटिस। एक्यूट एज इट्स नेम सजेस्ट कि एक्यूट जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और जो क्रोनिक होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। समटाइम्स क्रोनिक जो होता है वो मे बी ट्रीटेबल ना हो, ठीक है, बट एक्यूट जो होता है वो ट्रीटेबल होता है, या तो वो खुद ही ट्रीट हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद खुद ही ट्रीट हो जाता है, या फिर हम लोग मेडिकेशंस देकर या फिर थेरेपीज़ देकर हम उसको ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्यूट साइनोसाइटिस जो होता है वो होता किस वजह से, व्हाट आर इट्स कोजेज़। सो कोजेज़ की अगर हम बात करें तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जीज़ जैसे कि हे फीवर की वजह से हो सकता है। हे फीवर क्या होता है, हे फीवर को हम लोग सीजनल एलर्जीज़ भी बोलते हैं, ठीक है।
ये क्या होता है, सीजनल एलर्जीज़ क्या होता है, या फिर हे फीवर क्या होता है, ये कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से आपको इचीनेस फील हो सकती है, आपको वाटरी आइज हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है, या फिर कोई भी इस तरह के सिमिलर सिम्टम्स जो हैं वो आपको हो सकते हैं। सो दैट कंडीशन इज़ नोन एज हे फीवर, ठीक है। देन आपको नेज़ल पॉलिप्स और ट्यूमर हो सकता है। नेज़ल पॉलिप्स और ट्यूमर क्या होता है कि जब आपकी नोज़ की या फिर आपकी जो साइनसिस की लाइनिंग है वहाँ पर अगर पेनलेस बेनाइन ग्रोथ हो जाए, यानी कि ट्यूमर ग्रो करने लग जाए वहाँ पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेज़ल पॉलिप्स या फिर ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। या फिर अगर डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, नेज़ल सेप्टम क्या होती है, जो आपके जो नोस्ट्रल्स होते हैं उनको सेपरेट करके रखती है, दैट इज़ योर नेज़ल सेप्टम। सो अगर वो डेविएट हो जाए, इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रेट, इफ़ इट गेट डेविएटेड, अगर वो डेविएट हो जाए तो क्या हो सकता है, आपको साइनोसाइटिस की कंडीशन हो सकती है। टूथ इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। एज यू ऑल नो कि जो हमारी ओरल कैविटी होती है और जो हमारी नेज़ल कैविटी होती है वो आपस में लिंक करती हैं। तो अगर हमारे साइनसेस इन्फ्लेम्ड हुए हैं या फिर हमारे टूथ इन्फ्लेम्ड हुए हैं तो उसकी वजह से एक दूसरे पर भी इफेक्ट पड़ सकता है ना। सो टूथ इन्फेक्शन की वजह से, या फिर एडिनोइड्स जो है, हम चिल्ड्रन के अंदर जो एडिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, अगर वो इन्फ्लेम्ड हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए या फिर एनलार्ज हो जाए तो उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस की कंडीशन हो सकती है। एडिनोइड्स क्या होते हैं, अब एडिनोइड्स होते हैं सॉफ्ट एरियाज़ होते हैं जो कि आपकी एट द बैक ऑफ द नोज़ और थ्रोट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो अगर स्वेलअप हो जाते हैं तो आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये बच्चों में ही होता है, ठीक है, कि जो उनके जो एडिनोइड्स होते हैं वो स्वेलअप हो जाएंगे और जिसकी वजह से उन्हें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो इस कंडीशन में भी साइनोसाइटिस अकर हो सकता है, या फिर और भी कोई भी मेडिकल कंडीशन है जो कि साइनोसाइटिस को लीड कर सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। सो रिस्क फैक्टर्स क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, बेसिकली हम इसमें ये पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पर्टिकुलर डिजीज़ को लीड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हे फीवर और अदर एलर्जी कंडीशन की। अगर किसी पेशेंट को मान लो हे फीवर हो गया है, उसको वाटरी आइज, उसको स्नीजिंग, उसको इचनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, तो चांसेस है कि उसको साइनोसाइटिस की कंडीशन हो सकती है, नहीं कि उसके साइनसेस जो है वो भी इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ नेज़ल पैसेज एबनॉर्मलिटी, यानी कि जो नेज़ल पैसेज है जहाँ से इनकमिंग एयर जो होती है वो एंटर करती है, अगर वहाँ पर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से भी आपके साइनसेस इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं। या फिर कोई मेडिकल कंडीशन जैसे कि सिस्टिक फिब्रोसिस है, या फिर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ है यानी कि जर्ड, या फिर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, यानी कि अगर कोई इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो, या फिर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो उसको ऐसी कंडीशन हो सकती है। या फिर जर्ड की वजह से, जर्ड क्या होता है कि ये क्या होता है, एक डाइजेस्टिव डिजीज़ होती है जिसके अंदर जो आपका स्टमक एसिड होता है या फिर जो आपका बाइल होता है वो आपकी फूड पाइप की जो लाइनिंग होती है उसको इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसको 1 वीक या 1 वीक से ज़्यादा के लिए अगर उसको एसिड रिफ्लक्स या फिर हर्ट बर्न हो रहा है तो वो इंडिकेट करते हैं कि उस पेशेंट को जर्ड डिसऑर्डर या डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है, सिस्टिक फिब्रोसिस जो होती है एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर होता है जो कि आपके लंग्स को और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, ठीक है। सिस्टिक फिब्रोसिस बेसिकली क्या करता है, आपके जो सेल्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। कौन से सेल्स को, जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, उन सेल्स को क्या करता है वो अफेक्ट करता है, ठीक है। और जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं उन सेल्स को भी अफेक्ट करता है, और साथ साथ जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनको भी अफेक्ट करता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज़ रेगुलर एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स। अगर मान लो हम किसी ऐसी वर्क एक्सपोजर में हैं जहाँ पर हम कंटिन्यूसली किसी ऐसे पॉल्यूटेंट के एक्सपोजर में हैं जो हमें इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं हमारे साइनसिस को, तो उसकी वजह से भी हमें साइनोसाइटिस की कंडीशन अकर हो सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, यानी कि ऐसे कौन से सिम्टम्स, ऐसे कौन से साइन हैं जो कि हमें इंडिकेट करेंगे कि हमें साइनोसाइटिस की कंडीशन अकर हो गई है। तो सबसे पहले है ड्रेनेज ऑफ अ थिक येलो और ग्रीनिश डिस्चार्ज, यानी कि अगर क्या हो, अगर हमारा जो नोज़ है या फिर टू द डाउन द बैक ऑफ द थ्रोट अगर जो ड्रेनेज हो रहा है वो थिक है, वो येलो या फिर ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो हमें इंडिकेट कर सकता है कि साइनोसाइटिस की कंडीशन हो रही है, तो हम डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है अगर कोई नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कंजेशन है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें डिफ़िकल्टी हो रही है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है ना, तो उस कंडीशन में भी हमें साइनोसाइटिस की कंडीशन अकर हो सकती है। अगर हमें पेन फील हो रहा है, अगर हमें टेंडरनेस या फिर स्वेलिंग या फिर हमें अपनी आइज़ के अराउंड प्रेशर फील हो रहा है, चिक्स के अराउंड या नोज़ के अराउंड या फोरहेड के अराउंड प्रेशर फील हो रहा है, तो वो भी इंडिकेट कर सकता है साइनोसाइटिस की कंडीशन को, ठीक है। अगर आपके अपर जो और टीथ में जो है एकिंग फील हो रही है, मीन्स आपको पेन हो रहा है अगर, तो भी साइनोसाइटिस की कंडीशन को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। अगर रिड्यूस्ड, अगर जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल है या जो टेस्ट है, सेंस ऑफ टेस्ट है, अगर वो रिड्यूस हो गया है तो, या फिर अगर आपको ईयर पेन है तो, ठीक है। अगर कफिंग हो रही है और वो भी रात में
में वो बहुत ज़्यादा वर्स हो रही है तो उस कंडीशन को भी वो क्या इंडिकेट करेगा कि साइनोसाइटिस की कंडीशन हो सकती है ये। अगर आपको हेडेक बहुत ज़्यादा रह रहा है तो ठीक है, या फिर अगर आपको सोर थ्रोट है तो ये सारी की सारी जो कंडीशन हैं क्या किसको लीड करती है कि ये सब किस चीज़ को इंडिकेट करती है, साइनोसाइटिस की कंडीशन को लीड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मान लो कि साइनोसाइटिस अब हमें हो गया है, मान लो ठीक है, ये साइन एंड सिम्टम्स हमें आ रहे हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा, हम कैसे कंफर्म करेंगे कि साइनोसाइटिस ही हुआ है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, असेसमेंट करनी होगी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करनी होंगी, है ना। तो असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, है ना, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं हम लोग सबसे पहले पेशेंट का। सब हिस्ट्री टेकिंग में हम लोग देखेंगे कि क्या पेशेंट को पहले से तो कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं थी, या फिर फैमिली में तो कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम किसी पेशेंट को नहीं रही है, या फिर जेनेटिकली अगर हम लोग बात करें तो पेरेंट्स को या फिर किसी और गार्जियन को जो है साइनोसाइटिस की या किसी अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की डिजीज़ तो नहीं रही है। तो इस सबसे क्या हो सकता है कि चांसेस हैं कि वो इनहेरिट होकर पेशेंट के अंदर भी आ गया हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग हिस्ट्री में चेक करते हैं। ठीक है, या फिर कोई पेशेंट की पहले कोई पास्ट सर्जरी रही हो, मेडिकल सर्जरी, पास्ट मेडिकल सर्जरी रही हो, तो वो सब चीज़ें हम लोग हिस्ट्री में चेक करते हैं। मतलब जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो ये सब चीज़ें हम लोग पेशेंट से पूछते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का। सबसे पहले हम पेशेंट को इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, बाय विजन के थ्रू हम पेशेंट को इंस्पेक्ट करते हैं कि उसका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है ना, वो नॉर्मली ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको बोलने में क्या प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ठीक है, फिर हम पर्कस करते हैं या फिर हम ऑस्कल्टेट करते हैं ब्रेथ साउंड्स को, जो कि हमें डल फील होंगी या फिर क्रैकल साउंड हमें फील हो सकती हैं, है ना, जब हम लोग ऑस्कल्टेट करेंगे या फिर पर्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि हम लोग नेजल एंडोस्कोपी कर सकते हैं, इमेजिंग स्टडीज़ कर सकते हैं, यानी कि चेस्ट एक्सरे, सिटी स्कैन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेजल या फिर साइनस कल्चर कर सकते हैं, यानी कि उसमें हम लोग जो हमारी नेजल कैविटी है और जो हमारी साइनसेस हैं हम उनको एग्जामिन कर सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हुए हैं। या फिर हम लोग एलर्जी टेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि हम ये पता लगा सकते हैं कि किस एलर्जन की वजह से जो है डिजीज़ अकर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब हमने पता कर लिया है कि इस रीज़न की वजह से और ये साइन एंड सिम्टम्स आए थे जिसकी वजह से साइनोसाइटिस की कंडीशन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, पेशेंट को हम लोग ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, अगर मेडिकल मैनेजमेंट परफॉर्म नहीं होता है, मतलब अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं होता है और अगर वो पेशेंट जो है अगर मेडिकल मैनेजमेंट से भी ठीक नहीं हो रहा है, तब हम पेशेंट को क्या करते हैं, हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे आते हैं। बट इन केस ऑफ एक्यूट डिजीज़ बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट इज़ इनफ। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है वो इनफ रहता है एक्यूट डिजीज़ में। अगर हम लोग क्रोनिक की बात करें तो वहाँ पर चांसेस है कि हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट को अश्योर करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट। सो सबसे पहले तो हम पेशेंट को सलाइन नेज़ल स्प्रे दे सकते हैं। ठीक है, हम पेशेंट को नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओमनेरिस दे सकते हैं, हम बिकोनेज दे सकते हैं, बिकोनेज AQ दे सकते हैं हम पेशेंट को, या फिर फ्लोनेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये सब हम पेशेंट को नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में दे सकते हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम में जब भी आप लोग मेडिकल मैनेजमेंट लिखते हो उसमें आप कोई भी पर्टिकुलर ड्रग नेम को या ड्रग क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन को आप लिखते हो और आप प्रेस्क्राइब करवा रहे हो कि आपने मतलब ये जो है ये प्रिस्क्राइब किया या फिर हमने ये मेडिकेशन उसको दी है, तो उसमें आपको उस मेडिकेशन का नाम ज़रूर लिखना है। ठीक है, आपको अच्छे से जो भी उसके एग्जांपल, आप 2-3 एग्जांपल अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो एग्जामिनर थोड़ा आपको एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स, यानी कि OTC, यानी कि पेन रिलीवर्स दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एस्पिरिन हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं, एसिटामिनोफेन दे सकते हैं। एसिटामिनोफेन एक क्लासिफिकेशन है, पर्टिकुलर ड्रग टाइप है जिसके एग्जांपल्स है टाइलिनो। ठीक है, या फिर हम पेशेंट को आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एडविल, मोट्रिन। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट को हम लोग डिकंजेस्टेंट दे सकते हैं। डिकंजेस्टेंट्स हम कब देते हैं, जब पेशेंट को हमें नेज़ल कंजेशन जो है हमें पेशेंट का वो रिलीव करवाना हो, तब हमें डिकंजेस्टेंट्स हम पेशेंट को देते हैं। ठीक है, सो ये मेडिकेशंस जो होती हैं ये कुछ दिन के लिए दी जाती है बेसिकली। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, ओरल डिकंजेस्टेंट्स, नेज़ल स्प्रे एंड ऑक्सीमेटाजोलिन। ठीक है, ओरल डिकंजेस्टेंट्स में आप लोग सुडाफेट दे सकते हो, आप लोग एक्टिफेट दे सकते हो, फिर ड्राईऑक्सरल दे सकते हो। ठीक है, और नेज़ल स्प्रे के अंदर आप लोग नियोसिनेफ्रिन दे सकते हो। ठीक है, और ऑक्सीमेटाजोलिन में आप लोग एफ्रीन दे सकते हो। ये एग्जाम्पल है इनके बेसिकली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ आप लोग पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। अगर हो सकता है पेशेंट को फीवर आ रहा हो तो आप लोग पेशेंट को एंटीपायरेटिक्स आप लोग दे सकते हो, एंटीबायोटिक्स आप लोग दे सकते हो। एंटीबायोटिक्स में आप लोग पेशेंट को एमोक्सिसिलिन दे सकते हो, डॉक्सीसिलिन दे सकते हो, या फिर कॉम्बिनेशन ड्रग दे सकते हो विच इज़ ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्सोल। ठीक है, ये फिर आप पेशेंट को दे सकते हो टू ट्रीट साइनोसाइटिस कंडीशन। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज़ एंटी फंगल मेडिकेशंस। अब अगर मान लो पेशेंट को किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से साइनोसाइटिस हुआ है तो आप लोग क्या दोगे पेशेंट को? एंटी फंगल मेडिकेशंस दोगे, राइट। सो एंटी फंगल मेडिकेशंस बेसिकली किस लिए? फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ इम्यूनोथेरेपी, यानी कि क्या है, अगर मान लो किसी एलर्जन की वजह से अगर पेशेंट को साइनोसाइटिस की कंडीशन हुई है तो हम उसको एलर्जी शॉट्स यानी कि इम्यूनोथेरेपी पेशेंट को देंगे, ताकि उससे क्या होगा, जब हम इम्यूनोथेरेपी देंगे तो उससे जो बॉडी का रिएक्शन है टू द स्पेसिफिक एलर्जन वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड जो भी सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होंगे वो उनको ट्रीट करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ होल अबाउट द साइनोसाइटिस। ओके, नाउ हम एक्यूट जो क्रोनिक, हमने अभी एक्यूट साइनोसाइटिस पढ़ा, क्रोनिक साइनोसाइटिस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।